السلام علیکم ناظرین، فور ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے، خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 Tombs، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ ریاست کے 15 اضلاع میں مزید بارش کی پیش قیاسی، عادل آباد سب سے زیادہ متاثر۔ ہنگامی اقدامات کرنے وزیر اعلیٰ کے احکامات، نشیبی علاقوں سے عوام کی منتقلی۔ وزیر اعظم کے خطاب میں RSS کی ستائش، جدوجہد آزادی کی عظیم توہین، ملک کے لیے نقصان دہ، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹے شدید بارش کا امکان، شمالی اضلاع میں ریڈ الرٹ، بڑے پیمانے پر پانی کا اخراج۔ اور چندہ نگر میں خزانہ جیولرس ڈکیتی میں ملوث بہار ٹولی کے 2 ملزمین گرفتار، 900 گرام چاندی کے گولڈ پلیٹڈ زیورات ضبط۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔
रियासत के कई मुकामात पर शदीद से शदीद बारिश की महकमे मौसमियात की जानिब से की गई पेश क़यासी को देखते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सूरत हाल का आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। उन्होंने एहतियाती तौर पर नशेबी इलाकों के अवाम को दीगर महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने, बारिश और सैलाब के दौरान अवाम के कॉल्स पर बर वक्त उनको राहत पहुंचाने के अहकाम दिए हैं। रियासती सेक्रेटेरिएट के अलावा तमाम जिला कलेक्टर्स को 24 घंटे चौकस रहने की हिदायत दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक निजामाबाद, संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम और खम्मम में शदीद बारिश होगी। 15 अजला इससे रास्त मुतासिर होंगे। जगतियाल जहां औसत से कम बारिश हुई थी, वहां भी कल शब से बारिश का सिलसिला जारी है। जिला और शहर के ओहदेदारों से कहा गया है कि NDRF, SDRF की टीमों को तैयार रखा जाए, इम्कानी जानी और माली नुकसानात को होने न दें, नदियों, नालों, नहरों, तालाबों, कुंटों पर नज़र रखी जाए। नदियों और नालों के पश्तों को सहारा देने रेती के थैलों का पहले से स्टॉक तैयार रखा जाए। पुलिस और रेवेन्यू के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि पुलों, नहरों, तालाबों के अलावा ट्रैफिक को रोक दें और शहर हैदराबाद के हदूद में GHMC, हाइड्रा, SDRF, फायर सर्विसेज से कहा गया है कि वो अवाम के कॉल्स पर बर वक्त कार्रवाई करें। पानी से होने वाली बीमारियों के तदारुक के लिए महकमा सेहत को हिदायत दी गई कि वो दवाओं का वाफर स्टॉक रखें, मेडिकल कैंप्स मुनज़्ज़म करें। मवेशियों की हिफाजत के लिए भी उन्होंने अलहदा अहकाम दिए हैं। महकमे रेवेन्यू, बरकी, पंचायत राज, रोड एंड बिल्डिंग, मेडिकल एंड हेल्थ, बल्दी नज़्म व नस्क, SDRF एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखें। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म के खिताब में RSS की सताइश पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने RSS की सताइश को हिंदुस्तान की जदोजहद आज़ादी की अजीम तौहीन करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से RSS को नफरत थी। हिंदुत्व का नज़रिया भी हमेशा से हिंदुस्तानी दस्तूर के खिलाफ रहा। उन्होंने कहा कि RSS मुल्क में नफरत को फैलाती है। वज़ीर आज़म की सताइश इसकी तायद नज़र आती है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम हमेशा से बीजेपी की मुखालिफत करते रहे हैं। वज़ीर आज़म बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन RSS की तारीफ़ करना मुल्क के लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शम्सुल इस्लाम की किताब मुस्लिम अगेंस्ट पार्टीशन को NCERT के निसाब में शामिल करना चाहिए। मुल्क की तकसीम के बारे में हमेशा से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। उस वक्त सिर्फ 2 या 3% मुसलमानों को वोट डालने का हक भी नहीं था। मुसलमान मुल्क की तकसीम के लिए जिम्मेदार नहीं थे। जो लोग वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मुजवज़ा बिहार असम्बली इंतखाबात और अमेरिकी सदर ट्रंप के टैरिफ लुज़ूम पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। हर प्रधानमंत्री देश का 15 अगस्त के दिन लाल किले से मुल्क की आवाम को, जनता को अपने भाषण के ज़रिए ये बताती है कि उनकी सरकार ने क्या किया या क्या करने वाले हैं। एक रिवायत रही है। मगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन 2025 में खड़े होकर RSS की तारीफ़ करना, उनके 100 साल के मुकम्मल होने पर उनके बारे में प्रधानमंत्री ने देश को जो बताया है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जंग आज़ादी की जद्दोजहद की एक बहुत बड़ी तौहीन हुई। इसलिए कि RSS और उनकी जितनी तंजीमें हैं वो तो जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए, बल्कि वो तो अंग्रेज़ों की तायद में रहते थे और वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी से नफ़रत करते थे, चाहे गांधी हो या जितने बड़े बड़े नेता उस वक्त के हो हैं। तो मेरा मानना यह है कि RSS हमेशा से 1925 से लेकर अब तक और मुस्तक़बिल में भी वो इंक्लूसिव नेशनलिज़म की मुखालिफत करती रही। जो यही इंक्लूसिव नेशनलिज़म जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी गुज़रे हैं, उन्होंने इसी बुनियाद पर इस देश को आज़ाद करवाया अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। और जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है वो हमारे भारत के संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है।
तो प्रधानमंत्री अगर आरएसएस के दफ्तर पे गए तो मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता था वो तो स्वयं सेवक थे और हमेशा रहेंगे। मगर जब आप प्रधानमंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, जो संघ परिवार इस मुल्क में हेटरेट को फैलाती है, डिवीजन होता है, तो ये तो प्रधानमंत्री उनकी तायीद कर रहे हैं। आप हम देख लीजिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होती थी 1920 और 40 में, रोलेट एक्ट के खिलाफ जो एजिटेशन होता था, सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट था, या नेवल म्यूटिनी इन मुंबई थी, इसमें क्या आरएसएस नजर आती है क्या आपको? फिर आप देख लीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आरएसएस का जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में क्या लिखा गया है बताइए आप? क्या वो प्रार्थना इंक्लूसिव है? फिर आरएसएस का जो शपथ है, एक ही समुदाय के, रिलीजन, उनके सोसाइटी, कल्चर की बात होती है। आप बताइए, फिर आज प्रधानमंत्री इनका बात कर रहे हो, तो ये हमको अफसोसनाक दिखा कि प्रधानमंत्री इस तरह की बात किए बहैसियत प्रधानमंत्री के, वजीर आजम के। आप देश के बारे में बोलना था। आपने कल अपने भाषण में कहा कि दूसरी बातें कही। ठीक है, हम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ थे, रहेंगे, प्रधानमंत्री बीजेपी से आते हैं, मगर एक वजीर आजम तो है। मगर इस तरह उन्होंने आरएसएस की उनको सराहा, उनकी तारीफ की, ये सरासर गलत है। मिनिस्टर क्वार्टर्स जुबली हिल्स इलाके के एरागड्डा डिवीजन के बूथ इंचार्ज और अहम कायदीन के साथ रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इजलास में पूनम प्रभाकर ने कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि एरागड्डा डिवीजन में कायदीन मुत्तहिद होकर काम करें, उम्मीदवार कोई भी हो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, पार्टी कामयाब होना चाहिए। एरागड्डा डिवीजन की कोऑर्डिनेशन कमेटी, बूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करें। डिवीजन में मौजूद 46 बूथ के मसाइल को अवाम से हासिल करेंगे, उनकी यकसुई के लिए काम करेंगे, अवामी हुकूमत में अमल होने वाले प्रोग्रामों को अवाम तक लेकर जाएं। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कोमाटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी के मामले में डिसिप्लिन शिकनी कमेटी जायजा लेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीसी तहफुजात के मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस मामले में बहुत जल्द पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा जाएगा। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि राजगोपाल रेड्डी ने किस मकसद से पार्टी के खिलाफ बात की है, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। राजगोपाल रेड्डी के मामले को डिसिप्लिन शिकनी कमेटी को जायजा लेने का हुक्म दिया है। इस मामले में डिसिप्लिन शिकनी कमेटी फैसला करेगी। बीआरएस पार्टी के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने इल्जाम लगाया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को उड़ाने की साजिश की गई। मीडिया से बात करते हुए आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट के सुतून नंबर 20 में शिकाफ पड़ता है तो शुभात हैं कि यकीनी तौर पर यह धमाके के जरिए किया गया। उनका कहना था कि घर के सुतूनों में भी शिकाफ नहीं पड़ता, दर्जे हरारत के फर्क की वजह से दीवारों में शिकाफ पड़ता है। उनका सवाल था कि मेडीगड्डा बैरेज कैसे मुनहदिम हुआ जबकि कोई सैलाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह पूरी एक साजिश नजर आती है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि जय जवान और जय किसान का नारा देने वाली हुकूमत में किसान परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में खाद के लिए किसान परेशान हैं। निरंजन रेड्डी ने कहा कि खाद सप्लाई नहीं कर सकती नाअहल कांग्रेस हुकूमत है। एक तरफ मरकजी हुकूमत सरबराह करने का दावा कर रही है, रियासती हुकूमत इनकार कर रही है। दरमियान में खाद कहाँ गायब हो गई? किसान सड़कों पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले 22 लाख हेक्टेयर पर धान की काश्त में कमी हुई है, दीगर फसलों की काश्त कम हुई है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट क्या कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खाद की सरबराही को यकीनी बनाने पर हुकूमत तवज्जो दे। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल डी श्रवण ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी के पास कोई विजन नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ केसीआर को तनकीद का निशाना बनाने और चंद्रबाबू नायडू की तारीफ के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता। उन्होंने कहा कि हैदराबाद न्यू रेवेन्यू इंजन है, रियल एस्टेट शोबा बेहतर होगा तो तमाम शोबे बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मौजू पर कम बोलते हैं, ज्यादा जहर उगलते हैं। केसीआर के 10 साला दौर में हैदराबाद में रियल एस्टेट शोबे ने तरक्की की है।
रेवंत रेड्डी के दौर में तरक्की ठप हो गई। हैदराबाद इमेज को रेवंत रेड्डी बर्बाद कर रहे हैं। जीएचएमसी में इमारतों की तामीर की मंजूरी कम हो गई है। हुंडा में दफातर बिस्तरे मर्ग पर है। रेवंत रेड्डी फ्यूचर सिटी लाने की बात कर रहे हैं। जब तक हैदराबाद की तरक्की नहीं होगी ये मुमकिन नहीं है। डी श्रवण ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी बीजेपी और तमिलिसाई सुंदरराजन के खेल में हमको बलि का बकरा बनाया गया। 17 सितंबर को उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी होगा। रियासत तेलंगाना के शुमाल मशरकी और मगरबी अजला के अलावा जुनूबी अजला में भी वक्फे से बारिश हुई है। बेशतर अजला में मजीद बारिश की पेशकयासी की गई है। आदिलाबाद, कामारेड्डी, सिद्दीपेट, आसिफाबाद, जगतियाल, निर्मल, खम्मम, मुलुगु, कोत्तागुड़म, विकाराबाद, नारायणपेट, महबूब नगर, नागर कर्नूल, भोपालपल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, करीमनगर बारिश से मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात ने इन अजला में मजीद बारिश की पेशकयासी की है। आदिलाबाद उटनूर सड़क पर पानी जमा देखा गया है। सड़कों पर पानी के बहने से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आदिलाबाद में मुसलसल बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बाज़ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल देखी गई है। खोजा कॉलोनी में सैलाब के पानी में फंसी हुई कार से एक शख्स किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन कुछ देर बाद कार पानी में बह गई। आदिलाबाद के गढ़िया तनूर में बारिश की वजह से महसूर एक खानदान के 6 अफराद को डीडीआरएफ की टीम ने रस्सियों की मदद से बाहिफाजत बाहर निकाला। निर्मल में कदम प्रोजेक्ट के 12 दरवाजे खोल दिए गए हैं। बताया गया है कि प्रोजेक्ट में 86,994 क्यूसिक्स पानी का इनफ्लो था, जिसकी वजह से पानी का अखराज अमल में आया गया। तेलंगाना के दीगर अजला में भी आबपाशी प्रोजेक्ट में गैर मामूली बहाव बताया गया है। सिद्दीपेट में शदीद बारिश की वजह से एदोपला पाया मंदिर भी पानी में घिरी हुई देखी गई है। मांजरा नदी में भी पानी का गैर मामूली इनफ्लो देखा गया है। तेलंगाना रियासत के अजला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। ज़खायर आब और प्रोजेक्ट की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कई ज़खायर आब और प्रोजेक्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं और बड़े पैमाने पर पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारी बारिश के बायस नागार्जुना सागर की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हफ्ते को दूसरी बार प्रोजेक्ट के 14 दरवाजे खोले गए हैं। भारी मकदार में नागार्जुना सागर से पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निगरानी में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ कॉलोनियों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रिजवान कॉलोनी, नूर कॉलोनी, जैन कॉलोनी और अकबर कॉलोनी के अतराफ व कनाफ के इलाके जात का अहाता किया। उनके हमरा सरकारी महकमे जात, बरदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदार मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वहां 4 करोड़ रुपए की लागत से वीडीसीसी रोड, ड्रेनेज पाइपलाइन, बरखी खंबे और ट्रांसफार्मर्स के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए लागती तरक्याती काम भी किए जाएंगे, जिसके लिए टेंडर कॉल किया गया है, जिसमें मस्कूरा कामों के अलावा NP3 पाइपलाइन जो 6 mm कतर की होगी मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। शहर हैदराबाद में फ्लाईओवर्स और बड़ी शाहराहों पर नौजवानों की बाइक पर करतबबाजी का सिलसिला जारी है। ये मंजर एयरपोर्ट रोड का बताया जा रहा है। इससे पहले भी जू पार्क ता आराम घर, डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर और दूसरी बड़ी शाहराहों पर इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं। इस तरह की करतबबाजी दूसरों के लिए खतरा बन सकती है। सरपरस्तों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह की हरकतों से बाज रहने की ताकीद करें। हैदराबाद के चंदानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में खजाना ज्वेलर्स में डकैती की वारदात में मुलव्विस बिहार की टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए माधापुर डीसीपी विनीत कुमार ने बताया कि इस वारदात में 7 अफराद शामिल थे। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस टोली ने हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप से सोने के जेवरात लूटने का मंसूबा बनाया था। 31 जुलाई को उन्होंने जड़ेमटला के एक कॉलोनी में कमरा किराए पर हासिल किया।
2 सेकंड हैंड बाइक्स भी खरीदी गईं। चंदानगर में खजाना ज्वेलर्स का मुसलसल मुआयना किया गया। डीसीपी ने बताया कि मुलजिम आशीष कुमार सिंह को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था। इससे पूछताछ के बाद दूसरे मुलजिम दीपक कुमार शाह को भी गिरफ्तार किया गया। इस टोली के खिलाफ बिहार में 4 से 5 केसेस दर्ज हैं। एक मुलजिम पर 10 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि 2 गिरफ्तार किए गए अफराद के पास से 900 ग्राम चांदी के जेवरात को जब्त किया गया है। इस पर सोने की कोटिंग की गई थी। यह भी बताया गया कि 10 किलो चांदी के जेवरात का सरखा किया गया था। डीसीपी के मुताबिक ये टोली 20 दिन पहले हैदराबाद आई थी। गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त आशीष कुमार सिंह और दीपक कुमार की हैसियत से की गई है। डीसीपी के मुताबिक 24 घंटों के अंदर सारिकों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। मजीद 5 अफराद की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुश्तबा राउडी शीटर पर मुबैना कातिलाना हमले का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक दबीरपुरा दरवाजे के पास खिजर याकूबी पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया। खिजर याकूबी के चचा सैयद अब्दुल हमीद ने बताया कि सालगिरह पार्टी में बुलाकर उनके भतीजे पर हमला किया गया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई। जख्मी हालत में खिजर याकूबी को खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुरानी मुकासिमत और ग्रोहवारी झड़प के जाविये से पुलिस तहकीकात कर रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान राउडी शीटर्स के आपसी झगड़ों के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। साउथ ईस्ट डीसीपी चैतन्य कुमार, एडिशनल डीसीपी केसरीकांत ने चंद्रायन गुट्टा और बालापुर पुलिस के ओहदेदारों के हमरा बालापुर गणेश के रूट मैप का जायजा लिया। डीसी चैतन्य कुमार ने मुताल्लिका पुलिस ओहदेदारों को बालापुर गणेश के लिए इंतजामात से मुताल्लिक जरूरी हिदायत दी हैं। मिधानी चौराहे के पास आरटीसी बस की टक्कर से खातून शदीद जख्मी हो गईं। तफसीलात के मुताबिक 30 साला उपगुड़ा की साकिन खातून को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। मुकामी अवाम की तल्ला पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। एम्बुलेंस के जरिए जख्मी खातून को खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। कंचन बाग पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। अब्दुल्लापुर मेट में हादसे का शिकार कार से 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। तफसीलात के मुताबिक गांजा ले जाने वाली कार बाटा सिंगारम के पास डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस जब मुकामी वाक़या पहुंची और कार की तलाशी ली गई तो 20 किलो गांजा बरामद हुआ। बताया गया है कि उड़ीसा से गांजा बरा हैदराबाद महाराष्ट्र मुंतकिल किया जा रहा था। कार ड्राइवर मधु को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। और नजर आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन, एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद।
जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत के 15 अजला में मजीद बारिश की पेश कयासी। आदिलाबाद सबसे ज्यादा मुतासर, हंगामी इक़दामात करने वजीर आला के अहकामात। नशेबी इलाकों से अवाम की मुंतकिली। वज़ीर आज़म के खिताब में RSS की सताइश। जिद्दोजहद आज़ादी की अजीम तौहीन, मुल्क के लिए नुकसानदाह। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटे शदीद बारिश का इम्कान। शुमाली अजला में रेड अलर्ट, बड़े पैमाने पर पानी का इखराज। और चंदानगर में खजाना ज्वेलर्स डकैती में मुलविस बिहार टोली के 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 900 ग्राम चांदी के गोल्ड प्लेटेड जेवरात जब्त। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।